ओम शांति। आज के बाबार 17/11/2020 मुरली। आज बाबा मुरलीते विशेष बोलছেন যে बच्चे তোমরা যাকেও জ্ঞান শোনাবে তো সবার আগে বাবার পরিচয় দেবে। তো যতক্ষণ সে বাবাকে বুঝলো না তার আগে সে অন্য কিছু বুঝতে পারবে না। আর যদি কোনো অন্য ব্যাপারে সে বেশি প্রশ্ন করে তো সেখান থেকে তোমরা সরে যাও, তার সঙ্গে বেশি টিকটিক করো না, কেন যতক্ষণ বাবাকেই বুঝলো না তো অন্য কোনো জ্ঞান বুঝেও কোনো লাভ হবে না। তারপরে বাবা বলছেন যে সবসময় তোমরা পাত্র দেখে দান করো। তো যেমন চাত্রক বা যে বাবার জ্ঞানের খুব পিপাসী আত্মা বা যারা শিবের ভক্ত, লক্ষ্মীনারায়ণের ভক্ত, রাম সীতার ভক্ত, তাদের কাছে তোমরা যাও আর তাদেরকে বাবার এই জ্ঞানটা দাও। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে যে কোনো ধর্মপিতা যখন তারা এই ধরাধামে আসে তো তাদের পিছনে তাদের ধর্মের আত্মাগুলো নামতে শুরু হয়ে যায় আর তারা এই ধরাধামে এসে সেই ধর্মকেই ফলো করে, মানে সেই ধর্মপিতাকেই ফলো করে। তো কোনো ধর্মপিতা কোনো আত্মারই কিন্তু উন্নতি করতে পারে না বা সদ্গতি করতে পারে না। তাদের কাজই হচ্ছে নিজের ধর্মের আত্মাকে উপর থেকে নিচে নিয়ে আসা। তো বাকি সমস্ত ধর্মের আত্মাকে পরমধাম পুনরায় নিয়ে যাওয়া এই কাজ একমাত্র শিব বাবার আছে, তাই বাবাকে সদ্গতি দাতা বলা হয়। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে তোমরা বাবার বাচ্চা হয়ে বাবার সামনে তোমাদেরকে ধর্মরাজের শাস্তি খেতে হয়, এটা বাবার ভালো লাগবে না। এই জন্যে তোমাদেরকে একটাই চিন্তা সবসময় করতে হবে যে আমরা কত তাড়াতাড়ি যোগ করে পুরুষার্থ করে যাতে আমাদের ধর্মরাজের শাস্তি না খেতে হয়, সমস্ত পাপের সাজা থেকে আমরা মুক্ত হয়ে যাই। তো এইভাবে তোমাকে যোগ লাগাতে হবে। তারপরে আজকে বাবা আরেকটা কথা বললেন যে এত ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করো, তোমার দিলে সবসময় মিঠে বাবার ইয়াদ যেন আসে আর তোমার চোখ থেকে অশ্রুজল বাবার ইয়াদে বেরিয়ে থাকে, তাহলে এই অশ্রুজলই তোমার বিজয়মালার দানা হয়ে যাবে। তো এরকম বাবা আজকে আবার ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর সম্পর্ক কি সেটাও বললেন যে যে বিষ্ণু সেই ব্রহ্মা, যে ব্রহ্মা সেই বিষ্ণু, তো বিষ্ণুর আত্মাই আবার ব্রহ্মা হচ্ছে। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। মিঠে बच्चे, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? বাবা বলছেন যে তোমরা বেফিকর বাদশাহ, মানে একদম কোনো চিন্তা ফিক্র নয়, তা সত্ত্বেও তোমাদের একটা চিন্তা সবসময় থাকা দরকার, সেটা কি? তো বাবা উত্তরে বলছেন, हम पतित से पावन कैसे बने, यह है मूल फिक्रात। ऐसा न हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। বলছেন বাবার বাচ্চা হয়ে বাবার সামনে যেন কোনো শাস্তি না খেতে হয়। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर, तुम्हें परवाह नहीं। বলছে কেউ যদি বাবার জ্ঞান বুঝছে তাহলে সে বেহদের মালিক হবে, আর যদি না বোঝে তো তার ভাগ্য, সেটা তোমাদেরকে চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু তুমি কি করে ধর্মরাজের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে তার জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है वह बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप सभी का एक ही है। पहले पहले यह बात समझानी है तो फिर आगे समझना सहज होगा। अगर बाप का परिचय ही नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगे। पहले पहले तो यह निश्चय कराना है, सारी दुनिया को यह पता नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। वह कृष्ण के लिए कह देते हैं, हम कहते परमपिता परमात्मा शिव गीता का भगवान है, वही ज्ञान का सागर है,
मुख्य है सर्व शास्त्रों में शिरोमणि गीता। भगवान के लिए ही कहते हैं, हे प्रभु तेरी गतमत न्यारी। तो আমরা এখন জেনেছি যে কৃষ্ণ গীতা জ্ঞান দেননি, শিব বাবা গীতা জ্ঞান দিয়েছেন সঙ্গম যুগে। এই জন্যে ভগবানের জন্যেই বলা হয়, হে প্রভু তোমার গতিমতি সবার থেকে আলাদা। এই কথাটা কৃষ্ণের সঙ্গে লাগছে না। तो कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। बाप जो सत्य है वह जरूर सत्य ही सुनाएंगे। दुनिया पहले नई सतो प्रधान थी, अभी दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला एक बाप ही है, तो बाप कैसे बदलते हैं वह भी समझाना चाहिए। आत्मा जब सतो प्रधान बने तब दुनिया भी सतो प्रधान स्थापन हो। तो पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है, जास्ती टिक टिक नहीं करनी है। बच्चे सबार आगे तुम्हें अंतर्मुखी होते হবে, কারো সঙ্গে বেশি মানে জ্ঞানেরও বেশি টিক টিক করা যাবে না, নাহলে ওরা নানান রকম প্রশ্ন করবে। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं। तो पहले पहले समझाने ही एक बात चाहिए, जास्ती पूछने की मार्जिन न मिले। बोलो पहले तो एक बात पर निश्चय करो, फिर आगे समझाएं, फिर तुम 84 जन्मों के चक्र पर ले आ सकते हो। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा बोलছেন যে তুমি তোমার জন্মকে জানো না, এটা তোমার শেষ জন্ম। तो बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। पहले पहले अल्लाह पर ही समझाते हैं। अल्लाह समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। बोलो बाप सत्य है, वह भी असत्य नहीं सुनाते। तो बेहद का बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है तो जरूर शिव यहाँ आए होंगे ना। जैसे कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते हैं, कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे हैं, तुम भी उनकी औलाद हो और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ होंगे, बहन भाई हो गए, इसमें पवित्रता रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की यह है भीति। বলছেন যে যারা ব্রহ্মকুমার ব্রহ্মকুমারী হয়ে গেল, তারা সংসার জীবনের থেকে স্বামী স্ত্রী তাদেরকে পবিত্র থাকতে হবে। কেন? তারা ব্রহ্মার সন্তান, ভাই বোন। তো বলছে সংসার জীবনে থেকে পবিত্র থাকার এটা সব থেকে সুন্দর বিধি। बहन भाई हैं तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है। तो बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना, कैरेक्टर सुधारते हैं। अभी सारी दुनिया के कैरेक्टर सुधरने हैं। इस पुरानी पतित दुनिया में कोई कैरेक्टर नहीं, सब में विकार है। तो यह है ही पतित विशेष दुनिया। फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बनेगी? तो सिवाय बाप के कोई बना न सके। अभी बाप पवित्र बना रहे हैं। यह है सब गुप्त बातें। हम आत्मा हैं, आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है। सब पुरुषार्थ करते हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक निराकार है। लिबरेटर गाइड भी परमात्मा को ही कहा जाता है। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा ही आकर लिबरेट करते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले यह एक ही बात बुद्धि में बिठाओ। अगर न समझें तो छोड़ देना चाहिए। अल्लाह को नहीं समझा
तो बे से क्या फायदा, भल चले जाएं तो मुंझो नहीं। বাবা বলছেন যদি কেউ বাবাকে বুঝলোই না, বাবার উপরে কারো নিশ্চয়তা আসছেই না, তাহলে অন্য কোনো সাবজেক্ট বোঝানোর দরকার নেই, তাদেরকে ছেড়ে দাও। तुम बेपरवाह बादशाह हो, असुरों के विघ्न पड़ने ही हैं, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मन मना भव, जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी है और धर्म वाले कोई डिनाइस्टी स्थापन नहीं करते। बाप तो आकर सबको मुक्त करते हैं, फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है। वृद्धि होनी है, पतित बनना ही है। पतित से पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। वह तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगे। বলছে অন্য ধর্ম পিতারা এসে শুধু ধর্ম স্থাপন করে, কিন্তু কোন আত্মাকে পতিত থেকে পাवन बनाए ना। उसमें बड़ाई की बात ही नहीं, महिमा है ही एक की। वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना करते हैं, उनको भी समझाया जाए। लिबरेटर गाइड तो गॉड फादर ही है, बाकी क्राइस्ट ने क्या किया। उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, नीचे उतरती रहती हैं। বলছেন এটাই ড্রামার বিধান। যদি কোনো ধর্মপিতা উপর থেকে নিচে আসছে, তো তার সঙ্গে সঙ্গে যে তার ধর্মের যে আত্মাগুলো তারা নিচে নামতে শুরু হয়ে যায়। যেমন কোনো মৌমাছির রানী, সে যেখানে যায় তো পুরো দল সেখানেই যায়। তো এক একটা ধর্মপিতা হচ্ছেন মৌমাছি রানীর মতন। ওরা যখন নিচে নামছে তো তাদের ধর্মের যারা আত্মারা আছে, ফলোয়ার্স আছে, তারাও নিচে আসবে আর তারা ক্রাইস্টকেই মানবে, বা যে বুদ্ধ ধর্মের আত্মা তারা বুদ্ধকে মানবে, বা যারা ইসলাম ধর্মের আত্মা তারা ইব্রাহিমকে মানবে, বা যারা শিখ ধর্মের আত্মা তারা গুরু নানককে মানবে। তো এটাই হচ্ছে তাদের ধর্মের এটা ব্যাপার। তো বাবা বলছেন যে তারা তো পরমধাম থেকে পবিত্র আত্মাকে নিচে নামিয়ে দিচ্ছে, তারা তো পরমধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না। তো সমস্ত ধর্মের আত্মাদেরকে পরমধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে একমাত্র শিব বাবার। এই জন্য শিব বাবাকে লিবারেটর বা গাইড বলা হয়, সদ্গতি দাতা বা গতি দাতা বলা হয়। तो दुख से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है। यह एक पॉइंट बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। क्राइस्ट कोई दया नहीं करते, एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते। मर्सी होती है बेहद की। বাবা বলছেন যে ক্রাইস্ট কার উপরে দয়া করতে পারে না, কেন সবাইকে মুক্তি, জীবন মুক্তি একমাত্র শিব বাবাই দিচ্ছেন বেহদের। तो एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। सतयुग में सब सुख शांति में रहते हैं, दुख की बात ही नहीं। तो बच्चे एक बात अल्लाह पर किसको निश्चय कराते नहीं और बातों में चले जाते हैं, फिर कहते गला ही खराब हो गया। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। तुम और बातों में जाओ ही नहीं, बोलो बाप तो सत्य बोलेंगे ना। हम बीके को बाप ही सुनाते हैं। तो यह चित्र सब उसने बनवाए हैं, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। पतित पावन तो एक ही है ना। तो बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। बनेंगे पुरुषार्थ से। फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं। বলছে যে ব্রহ্মা সেই বিষ্ণু, আবার যে বিষ্ণু সেই ব্রহ্মা। এই জন্যে বিষ্ণুর নাভি পদ্ম থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি দেখানো হয়। অর্থাৎ যে আত্মা
বিষ্ণুর আত্মা ছিল সত্যযুগে, সেই 84 জন্মের পরে কল্পের শেষে ब्रह्मा হচ্ছে, तो विष्णु ही होच्छेन ब्रह्मा। तो बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं, तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, फिर तुम ही 84 जन्म ले अंत में शूद्र बनते हो, फिर बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, ऐसे और कोई बता न सके। तो पहली बात है बाप का परिचय देना। बाप कहते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाने यहाँ आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा देता हूँ, इनका नाम ही है भागीरथ, तो जरूर इनमें ही प्रवेश करेंगे। यह है भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म, फिर सतो प्रधान बनते हैं। उसके लिए बाप युक्ति बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है। कैसे मिला वह समझाते हैं। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि में भी तुम कह दो कि पहले एक बात को समझो, फिर और बातों में जाना। यह बहुत ज़रूरी है समझना, नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगे। पहले जब तक निश्चय नहीं किया है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। इस समय है ही भ्रष्टाचारी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी थी, ऐसे ऐसे समझाना है। मनुष्यों की नब्ज भी देखनी चाहिए, कुछ समझता है या तवाई है। वैसे यदि कारो माथा नेगेटिव थाके बा गरम थाके तो से समय ताके ज्ञान सुनाना उचित ना। अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चात्रक पात्र को परखने की भी बुद्धि चाहिए। जो समझने वाला होगा उनका चेहरा ही बदल जाएगा। तो अच्छे तुम्हें तार चेहरा देखे तारपरे ज्ञान दो। जो बाबार ज्ञान सुनते राजी आछे कि ना, से चात्रकेर मतन बाबार ज्ञान बुझछे कि ना, तबे ताके ज्ञान बोझाओ। पहले पहले तो खुशी की बात देनी है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना, तो बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। बाप को याद करने की मेहनत है, उसमें ही माया बहुत बिघन डालती है। यह भी खेल बना हुआ है, तो बाप बैठ समझाते हैं कैसे यह खेल बनाया है। दुनिया के मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते, तो बाप की याद में रहने से तुम किसको समझाने में भी एक रस होंगे, नहीं तो कुछ न कुछ कमी निकालते रहेंगे। बाबा कहते तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ न लो, स्थापना तो जरूर होनी ही है, भावी को कोई भी टाल नहीं सकते। उल्लास में रहना चाहिए। बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। और तो सभी संबंध है कलयुगी। বলছেন বাবাকে এত ভালোবেসে স্মরণ করো যে বাবার यादे তোমার চোখে যেন অশ্রুজল চলে আসে। तो यह है रूहानी बाप का संबंध। यह तुम्हारे आंसू भी विजय माला के दाने बनते हैं। बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं। बाबा छे तुम्हार प्रेमेर अश्रुजल सेटाओ विजय मालार दाना तुम्हें बानिए देवे। तो खूब अल्प बाच्चारा आछे जारा एत प्रेमे बाबा के स्मरण करे। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल अपने भविष्य को ऊंचा बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, न इतने चित्रों की दरकार है। नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान कौन है। বলছে যেখানে তোমরা প্রদর্শনী করো তো গাদা গাদা ভাই বোন ওখানে গেলে কোনো লাভ নেই।
বা এতগুলো চিত্র প্রদর্শনী নিয়ে যাওয়ারও কোনো দরকার নেই, 2-4টে মুখ্য মুখ্য চিত্র নিয়ে যেতে হবে। उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का सीढ़ी का बस, बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं हैं। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने, बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजा खाएं, यह तो बड़ी दुर्गति की बात है। अच्छा, बाबार होए তুমি আবার বাবার সামনে গিয়ে শাস্তি খাচ্ছ, তো এটা তো বিশাল দুর্গতির ব্যাপার। तभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खाने समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। सजा न खानी पड़े यह सबसे जास्ती फुरना रखना है। तुम रूप भी हो बसंत भी हो, बाबा भी कहते मैं रूप भी हूँ बसंत भी हूँ। तो रूप माना ज्योतिर्बिंदु, बसंत माना ज्ञानी। तो बाबा बोलते रूप और बसंत, छोटी सी बिंदी हूँ और फिर ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते हैं, 84 जन्मों का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान का एक एक रत्न कितना अमूल्य है, इनकी वैल्यू कोई कर न सके। इसलिए बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली तुम हो। तुम्हारे चरणों में पद्म की निशानी भी दिखाते हैं, इनको कोई समझ न सके। मनुष्य पद्म पति नाम रखते हैं, समझते हैं इनके पास बहुत धन है। पद्म पति का एक सरनेम भी रखते हैं। तो बाप सब बातें समझाते हैं, फिर कहते हैं मूल बात है बाप को और 84 के चक्र को याद करो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है। বলছে জ্ঞান হচ্ছে ভারতবাসীদের জন্যে। तुम ही 84 जन्म लेते हो तो यह भी समझ की बात है ना। और कोई सन्यासी आदि को स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं कहेंगे, देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं। तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं है। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं ना। तो यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट क्या है, हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर सुनकर वंडर खाएंगे। हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, क्या पढ़ते हो, मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हारे चित्र भी फर्स्ट क्लास हैं। धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे, शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिरों में। बाबा বলছেন যে ধন हमेशाई পাত্রকে দেখে দেওয়া দিতে হয়। তো বাবা বলছে যে আসল পাত্র তুমি কোথায় পাবে, তো আসল পাত্র পাবে শিবের মন্দিরে, লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দিরে, राम सीतार मंदिरे। तो वहाँ जाकर तुम उन्हों की सेवा करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गंगा नदी पर भी जाकर तुम समझाओ पतित पावनी गंगा है या परमपिता परमात्मा है। বলছে তুমি গঙ্গা নদীর তটে চলে যাও আর সবাইকে গিয়ে জানাও যে পতিত পাবনী গঙ্गा ना परमपिता परमात्मा। तो सर्व की सदगति यह पानी करेगा या बेहद का बाप करेगा। तुम इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, दान करते हो। कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसे विश्व का मालिक बनाते हो। तो भारत विश्व का मालिक था ना। तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है। यह बाबा तो समझते हैं,
मैं बाप का एक ही सिखिलदा बच्चा हूँ। बाबा ने हमारा यह शरीर लोन पर लिया है। ब्रह्मा बाबा बोलছেন যে আমি শিব বাবার একমাত্র লাডলা বাচ্চা। শিব बाबा আমার এই শরীরকে लोने নিয়েছে। तुम्हारे सिवाय और कोई भी यह बातें समझ न सके। बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है। हमने बाबा को कुल्हे पर बिठाया है, अर्थात शरीर दिया है कि सर्विस करो। उनका एवजा फिर वह कितना देते हैं? जो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं, नंबर 1 ले जाते हैं। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं ना। बाबूजी যখন ছোট ছোট বাচ্চা খুবই মিষ্টি, তো তাকে বাবা আদর করে তার কাঁধে উঠিয়ে নেয়। তো সেরকম বাবা বলছে, বলছে তোমরাও আমার থেকে উঁচু হচ্ছ, আমি তোমাকে একদম কাঁধে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। तो माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती है, बाप तो कंधे पर चढ़ाते हैं। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता। বলছে বাবার এটা জ্ঞানের পাঠশালা, এটাকে কোনো কল্পনা বলা যাবে না। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या वह कल्पना हुई? तो यह भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। एबार धारणार मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। और से खूबी भालोबेसे बाबा के स्मरण करो। याद में प्रेम के आंसू आ जाएं और यह आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। বলছে এত বাবাকে ভালোবেসে স্মরণ করো যে বাবার জন্য তোমার চোখে প্রেমের অশ্রু জল চলে আসে, আর এই অশ্রু জলই তোমার বিজয় মালার দানা হয়ে যাবে। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। 2 नंबर पॉइंट, अंतर्मुखी हो सबको अल्लाह का परिचय देना है। ज़्यादा टिक टिक नहीं करनी है। एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य न हो जिसकी सजा खानी पड़े। বলছে যে একটাই চিন্তা করো যে এমন কোনো কর্তব্য আমার দ্বারা যেন না হয় যার শাস্তি আমাকে পেতে হবে। আজকের বরদান, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। বলছে शुभ भावना দ্বারা सेवा करे যারা অপকারী তাদেরও জন্য তুমি উপকার করো बाप समान हुए। तो जैसे अपकारियों पर बाप उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो लेकिन अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरने को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। বলছে স্বপরিবর্তন দ্বারা শুভ ভাবনা দ্বারা যেমনই আত্মা হোক সে পরিবর্তন হবেই। কেন? শুভ ভাবনা সফলতা অবশ্যই প্রাপ্ত করায়। আজকের স্লোগান, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। বলছে জ্ঞানের সিমরন করাই হচ্ছে সবসময় হর্ষিত মুখ থাকার আধার। ওম শান্তি।